tackled in the film: religion, caste, uh, then patriarchy. That's very interesting. That angle was very interesting. And then you have COVID coming later. So, what was the most challenging for you? Tackling so many issues in one film. I mean, challenging, I would say, it wasn't like, let's say this also. That's, it was just that these two boys, it is based on a true story, as you all know, and these two boys existed for real, and that's how Basharat Peer took that and wrote this seminal piece for the New York Times. So we picked up from that, but then, like, because they couldn't be just hollow tokens, they had to be fully fleshed out. And also, since it had to be that way, so my thing is that when I write or direct, I have to make it my own. Otherwise, I find it very difficult to, like, feel for it. I have to feel for it. I have to, like, so then I actually went deep dove in my own childhood, my own teenage, and try to understand what I went through. Because a large part of my life I've been passing and masquerading as upper caste member, and then I came into my own. So this is sort of similar to how Chandan's arc has been. Um, so the idea has been not to, like, snuff it with too many issues or whatever. This came organically, and also, it is also, like, okay, fine. I'm from a particular community, but I can't be presenting it like one goody whatever. So I had to also call out my own thing, and this happened because I grew up in a patriarchal household. So I had seen how my sisters were favored more than me, and that shame I carried for a long time. The shame of hiding my identity and passing off as someone else. I had to put it out on film. Yeah, I was favored more than my sisters, and like they would tell my nephews and nieces were told that your Neeraj mama was very cute, and then that's why we were favoring. But no, I realized that it was not because I was cute or little bit. It was just because of male. So I had, and actually, it's also my real sister's name, Vaishali. So she saw it yesterday, and she felt like, I didn't realize all of this, and, like, she was quite overwhelmed. So yeah, so it's not by, like, design, but it's by organically how, you can't put characters as just like unidimensional. That, and also we each of them, like either Shoaib's character or Chandan's character, they're not monoliths. They have to have some three dimensionality to them. They need to have flaws. They need to have. They can't just be like hard-working, very jujharu people. They should also have some innate flaws in them. So that was the whole idea. Yeah, I'm Rajiv Vijayakar here. Hello. I'm proud to say that I was on the jury which selected this movie for the Academy Thank you, Awards. sir. Yeah. And of course, congratulations for the movie. My question was a little, the only thing I'm not very clear about the film is how did that New York Times article transform into this film? What was the process? See, the New York Times article was actually the climax of the film, because that article was just the climax, that what happens when these boys take that journey from Surat to their home. So that's why it's called Homebound. And that, I mean, my penchant for realism and my adherence to journalism and my respect for journalism is that I didn't want to tamper with that story. So that bit, of course, it's a bit dramatized from what the actual story was. Like, the actual final event did not happen on the road; it happened in a hospital. But I took those liberties to just to enhance the drama. But that entire section was not tampered with much. But the challenge for me was that if you have that, it's like you have the climax, and now you have to build an entire story, entire world, entire characters. I did meet with the surviving families, and but then, so much has gone on in their lives that they couldn't open up much. So yes, yes, I did. We traveled. So me and Basharat also had this journey, like the Shoaib and Chandan. We went to the village, and uh, it was simply heartbreaking. Mohammed Sayyub and Amrit, these were the two people. And I went to Amrit's house, and it was heartbreaking. It was simply heartbreaking. And since you all have seen the film, I must tell you that it is my wishful thinking of I want to put out marginalized communities, and the only way to escape is education. That's the message that I'm giving out. And it was lovely to see that Shoaib finally decides that he also does fulfill his friend's promise, his dream that he should get education, that he does that. But you know how real life is? That actual person who's in real life,
He couldn't. He's now a construction worker in Dubai. Yeah, hi Neeraj sir, Ishan, Vishal. First of all, congratulations जो आपका ऑस्कर नॉमिनेशन हुआ है फिल्म होम बाउंड का। Nomination नहीं हुआ सर, entry हुई है सिर्फ. हाँ सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एंट्री। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने मशान फिल्म बनाया था बिल्कुल हटके एक सब्जेक्ट था और काफ़ी इंटेंस उसमें करेक्टर भी प्ले किया गया था जो विकी सर ने किया था। होम बाउंड भी सब्जेक्ट कुछ उसी तरह से इंटेंसिटी ला रहा है और कहीं ना कहीं एक विलेज स्टोरी को और एक सिटी स्टोरी को क्लैब किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जब कास्टिंग किया जा रहा था ईशान और विशाल के करेक्टर्स के लिए तो क्या आपका थॉट प्रोसेस था कि ये परफेक्ट कास्टिंग रहेगी इस करेक्टर के लिए, शोएब और उसके लिए चंदा? देखिए मैं किसी इंसान की मंशा देखता हूँ पहले कि उनमें अंदर वो कुर्बत है कि नहीं, अंदरूनी हिस्से को टटोल के देखता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि ना कि भाई अब दोनों इतने गुड लुकिंग है, क्या लोग बोलेंगे गांव का दिखेगा नहीं। एंड ये हमारी धारणा बन चुकी है, काफ़ी लोग सोचते भी हैं कि शायद अरे ऐसे तबके के लोग आप इतने फेयर स्किन क्यों दिखा रहे हैं, आप जानवी कपूर को एक दलित कैरेक्टर क्यों बता रहे हैं। बट मैं कहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के वो हैं, तो उसमें मुझे कभी वो नहीं था। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि इनमें एक्टिंग का टैलेंट और अंदर से भूख होनी चाहिए, होड़ होनी चाहिए कि भाई इस किरदार को हम बहुत शिद्दत से निभाएंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए, जैसे ये लोग बता रहे थे, उससे मेरे लिए क्या है कि अब सभी अच्छे एक्टर्स हैं, दोनों सभी सारे अच्छे एक्टर्स हैं तीनों के तीनों, लेकिन मेरे लिए था कि आप सिर्फ परफॉर्म करोगे, लाइनें बहुत अच्छी बोलोगे, बहुत अच्छा मूवमेंट करोगे, बस ये ही काफ़ी नहीं था। मैं चाहता था कि क्योंकि हम चारों जो फिल्म में, हम सारे जितने भी फिल्म में हैं, हम लोग एक पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शायद वो हज़ारों चंदन हैं, हज़ारों शोएब हैं, हज़ारों सुधा हैं और हज़ारों वैशाली हैं इस दुनिया में और हमारे भारत में, जिनकी कहानी हम बोल रहे हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहता था कि ये सब लोग उतनी शिद्दत से कैरेक्टर्स को समझे। तो हमारा वो जो सफ़र रहा है ना, कि जो समझने की, मतलब जस्ट टेक्स्ट नहीं, जस्ट डायलॉग नहीं, उसके पीछे क्या क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे द फर्स्ट लेसन दैट दे वेंट विथ वाज, इन लोगों को तीनों को मैंने किताब दी थी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, वो पढ़ने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इनको वो सब बताया, फिर हम लोग गाँव में घूमे ताकि इनको रियल एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि किसी का लिव्ड एक्सपीरियंस आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, आप जितना हो सके करीब पहुंच सकते हैं। तो मैंने वो, तो इसीलिए इन लोगों की कास्टिंग हुई है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो आपको लिव्ड रियलिटी के जितने करीब पहुंचेंगे। तो मैं यही चाह रहा था कि ये किरदार आपके पास नहीं आने वाले, आपको जाना होगा, आपको सफ़र तय करना होगा कि यहाँ से आप उठेंगे शहरों से, अपने अपने प्रिविलेज लाइफ से निकल कर आप वहाँ जाओगे और उस चीज़ से रूबरू होगे, तभी वो आप में अंदर समाएगा। तो इन लोग, मतलब मैं अभी दोबारा फिल्म बनाऊंगा तो शायद इन तीनों के साथ दोबारा बनाऊंगा, शायद। मतलब आप जानते हैं, मैं बिल्कुल। हाय ईशान, विशाल, मैंने फिल्म देखी है, मुझे बहुत पसंद आई और सभी को पसंद आ रही है और अब ऑस्कर के लिए भेजी जा रही है, तो भेजी गई है यहाँ से, तो उसके लिए बहुत बधाई। मुझे दो सीन खासकर बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग लगे। एक, जब आप लोग पैदल लौट रहे होते हैं और चंदन आपकी गोद में वो दम तोड़ रहा होता है, और एंड में जब आप उनकी माँ को वो चप्पल दे रहे होते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आप दोनों के लिए कौन, मतलब वैसे तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, हार्ट ब्रेकिंग है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सीन कौन सा था? बहुत ज़्यादा इमोशनली डिफ़िकल्ट सीन, मतलब फिजिकली तो डिफ़िकल्ट फिल्म है ही, हमें समझ में आ ही रहा है जी। इमोशनली डिफ़िकल्ट फिल्म सीन कौन सा था आप दोनों के लिए? I think कौन से सीन सर? मजाक कर सर। ज़्यादा रिस्क ले रहा है। बस ये है कि स्पॉयलर्स ना दें, क्योंकि लोग देखेंगे तो जस्ट जी, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब हम पूरी शिद्दत से दें, बट हम स्पॉयलर्स ना देंगे क्योंकि अभी इंडिया में लोगों ने देखी नहीं है आप फिल्म। लोगों ने देखी है फिल्म, आप समझ सकते हैं कि तो अगर डिटेल वो- में जाए बगैर मैं आपके दोनों वाकये का, मैं दोनों सीन्स का जवाब दूँ। आई स्टार्ट। हाँ, मैं एक्चुअली हाँ, ईशान के सीन के बारे में ही बोलने वाला था। आई थिंक ईशान के ऐसे दो सीन हैं जो इमोशनली बहुत चैलेंजिंग थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने उतने चैलेंजिंग सीन किए हैं, बट
ईशान के सीन मैंने जो देखे तब मुझे ऐसा लगा कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, और मैं उन्हीं सीन के बारे में आई थिंक ईशान, इफ़ यू शेयर योर एक्सपीरियंस वुड बी बेटर, आई थिंक। नहीं, देखिए, चैलेंजिंग तो कोई भी सीन हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है, और विशाल ने पहले इंटरव्यूज़ में कहा भी है, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अक्सर ऐसा होता है जो पेपर पे सबसे मुश्किल सीन लगता है या इमोशनली इंटेंस सीन लगता है, वो किसी ना किसी तरीके से हो जाता है, बिकॉज आई थिंक आपका पहला कनेक्शन बतौर एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, उन चीज़ों से बनता है ऑन अ बेस लेवल। पर जो सीन ज़्यादा सिंपल होते हैं, जिसके बारे में आप शायद ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप ज़्यादा घबराते नहीं हैं उन सीन से, कहीं ना कहीं उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कोई ट्रिकी इज़ द वर्ड दैट वी यूज़, कि वो ट्रिकी सीन्स हो जाते हैं और उनको समझना और उसका सुर पकड़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस फिल्म में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, और विशाल का भी एग्जाम्पल है, तुम प्लीज़ जवाब देना अपना, क्योंकि इज़ बीइंग वेरी हम्बल, बट विशाल ने मतलब ज़बरदस्त काम किया है इस फिल्म में। आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क दैट ही हैज़ डन, एंड नॉट जस्ट मी, आई थिंक एवरीवन इन आवर टीम इज़। सॉरी, एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे विशाल का जब पूरा जो कोविड चंक है जब हम चल रहे हैं ना, मुझे बीच बीच में लग रहा था कि सच में बीमार तो नहीं पड़ गया। एक बार देख लो, क्योंकि वो सच में इतना इसने रियलिटी से वो किया है ना, मतलब मैं चेक कर रहा था कि ये ठीक है ना। और एक छोटा सा मैं इसमें ऐड करने के एग्जांपल दूंगा, एक सीक्वेंस है फिल्म में, उसी वॉक में, जब फिजिकल एक रिएक्शन आता है इनका, तुम्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ज़रा ढूंढिएगा उसको फिल्म में। इतना कमाल किया है इसने, हमको वाकई में लगा था कि ये शायद बीमार पड़ गया, तो तो और भारी भी था यार उठाने में, बट 9 किलो कम करने के बाद भारी था। हाँ हाँ मैंने भी तो कम किए थे। सामान भी था साथ। तो ये है कि पहली बार मेरे साथ मेरे करियर में ऐसा हुआ कि जो सीन पेपर पे सबसे मुश्किल था, वो ही साबित हुआ सबसे मुश्किल मेरे लिए परफॉर्म करने में, और वो वही सीन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आई थिंक कि एक तरह से देखा जाए तो पूरी फिल्म उस पर कहीं ना कहीं हिंज कर रही थी। फिल्म का जो वज़न था उस सीन पे बहुत भारी था, और चूंकि वो सीन असली आर्टिकल से लिया गया है और बेस्ड इन रियलिटी है, तो एक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम उसको पूरी ईमानदारी से परफॉर्म करें और मैनिपुलेट बिल्कुल भी ना करें। तो वो था बहुत मुश्किल सीन परफॉर्म करने में, और उसकी कहानियाँ भी कई सारी हैं जो आई थिंक पोस्ट रिलीज हम शेयर करेंगे। लेकिन आई थिंक नीरज भाई ऐसे डायरेक्टर हैं जो कभी हिचकिचाते नहीं हैं, कभी हेजिटेट नहीं करते स्टेक्स आपके बढ़ाने में। वो कह भी देते हैं कि देखो यार ये, और ये मेरी पहली फिल्म में मजीदी सर मेरे साथ किया करते थे, और मैं एक जवान एक्टर था, मेरा क्राफ्ट रॉ था, लेकिन मुझे डरा डरा के भी करते थे, एंड दैट वाज नॉट द इंटेंशन, बट ही वुड ऑलवेज से कि ये बहुत ज़रूरी सीन है एंड वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड वी कांट बी लैक्स ऑन दिस। तो आई थिंक हम दोनों डरे हुए थे इस सीन को लेकर कुछ हद तक, लेकिन आई थिंक जिस तरह का माहौल नीरज भाई के सेट पे होता है, एवरीथिंग इज सपोर्टिंग द एक्टर, एवरीथिंग। इन एक चीज़ मैं कहूँगा, गेट कीप नहीं करेंगे इस चीज़ को, एक प्रोटोकॉल है इनके सेट पे जिसको ये कोड 360 बुलाते हैं। तो कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बहुत इंटेंस सीन होते हैं जिसमें कोड 360 लागू हो जाता है हमारे सेट पे। द फर्स्ट एडी सेज के कोड 360 एक्टिवेटेड, तो सारे यूनिट के मेंबर्स हैं, वो जो सीन का जो टोन है, सीन का जो सुर है, उसमें फंक्शन करने लगते हैं, उसी सुर में काम करने लगते हैं। तो कहिए एक इमोशनल सीन है तो लोग ज़ोर से बातें नहीं करेंगे, एक्टर को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, एक्टर से बातें नहीं करेंगे, क्लैप भी अगर दी जाएगी तो सॉफ्ट क्लैप दी जाएगी शॉट से पहले। अगर गुस्से वाला सीन है तो क्लैप, हार्ड क्लैप होगी। ऐसे क्लैप जो सीन का टोन है, इमोशन है, उसके हिसाब से देना है, उसी टोन में देना है। तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। नीरज भाई म्यूज़िक भी यूज़ करते हैं, जो मेरे लिए सबसे बड़ा बोन है। अगर मेरे करियर की शुरुआत से कोई एक प्रोसेस है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर फिल्म के हिसाब से प्रोसेस आपको बदल लेनी चाहिए, एक्टर की प्रोसेस फिल्म पे कभी हावी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एक कोई ऐसी चीज़ है जो मैं पर्सनली हर फिल्म से एज ए रिचुअल करता आया हूँ, वो है यूज़ म्यूज़िक। तो मुझे जब पहला पेचेक मिला था मेरी पहली फिल्म पे बियॉन्ड द क्लाउड्स में, तो मैंने उसका इस्तेमाल एक छोटा सा स्पीकर खरीदने में ही किया था, और उसी फिल्म में मैं यूज़ कर रहा था। वो स्पीकर मेरे वैन में रहता था या फिर हेडफोन्स लगाए होते थे। और म्यूज़िक से मुझे लगता है कि इमोशंस जो होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं वो उभर के आ जाती हैं बाहर।
That's my feeling. And I think it's a very simple thing to get out of your head. अक्सर हम ओवर थिंक कर लेते हैं, जब अटक जाते हैं अपने खुद के थॉट्स में, तभी रुकावट आती है सीन में फ्लो करने में. तो आई यूज म्यूजिक अ लॉट एंड ही Actually, इसमें हम लोग वी शुड एक्नॉलेज द म्यूजिक दैट फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग दैट यू टॉकिंग अबाउट. पे रहते हैं. उसमें कहीं 3-4 गाने थे जो हमारे थे, लेकिन उसमें सबसे स्पेशल जो गाना था, जो काफ़ी मुझे प्रभावित भी किया और बहुत सालों से, और ये फिल्म के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है पूरी फिल्मांकन के दौरान और उसके लिखने के दौरान. मैं सुबह उठ के मतलब 4 बजे उठ के लिखना शुरू करता था, और कुछ नहीं आता था, वो गाना सुनता था तो कहीं एक मिल जाती थी. वो था राह पे रहते हैं, जो गुलजार साहब ने लिखी है, आर डी बर्मन, नमकीन पिक्चर का गाना है. तो ये इतना हम लोगों को, मतलब मैंने ईशान बहुत सुनने लगा था, मैंने बोला तुम मत सुन क्योंकि वो क्लाइमैक्स के लिए रख, उसको यूज़ मत कर ज़्यादा. तो Sorry to interrupt. Last two questions. अरे इनको कॉफी पिला दी जाए प्लीज, बहुत ज्यादा अंग्रेजी ले रहे हैं. I have a question here. Hi, I have a question here. I'm Princey from the People Bazaar. I've been Hi, sharing hi, for a film on my Instagram. My question is to all three of you. The film has been received very well across all international platforms, and now it's pitched for yet another bigger international platform. What would you want the biggest takeaway that the global audience take from this film? I think it's a cumulative answer that all of us will agree. It's empathy. We really want, and that's our core message, that we want. There are many kinds of people, many kinds of communities, and everything. But I think it's eventually people failing people. So our entire goal has been making this film is that people that don't look like you, that don't talk like you, that don't think, that have different worldviews and value systems, and also maybe ideologically different. I'm saying that we should have empathy even for those, because it's gone on too much that there's so much hate and there's so much of disdain for each other that it's about time across the world that we just stop and take a beat and maybe have a conversation, a dignified conversation, and engage in dialogue and not engage in, aspersions and like squabbles and stuff. So that's my entire. You guys want to add? Seconded, ma'am. And I think just to add to that, sometimes it's not necessary to accept another person's way of living, ideology, way of thinking. You do not have to accept it as your own or accept it at all. Sometimes it's enough to just lend a ear and listen and have the tolerance, or I don't even like the word tolerance because intolerance क्यों ही होनी चाहिए. I feel just to have the openness of heart to just listen and make space for the other person. That's it. आई थिंक सर ने और ईशान ने हर एक चीज़ बता दी. मैं छोटे सेंटेंस में आई थिंक इतना कहना चाहूँगा कि इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, और उसके बीच में जाति या रिलीजन या कलर, हाइट, बॉडी, क्या खाता है क्या नहीं, उन तरीके से नहीं देखना चाहिए. और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने की अगर कोशिश करें तो आई थिंक हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है. प्यार को प्यार रहने दो, रिश्तों का इल्जाम न दो. Sorry, अगली फिल्म में सर डायलॉग सारे लिखेंगे. नहीं, गुलजार साहब 2 बार हो गया. Hello, sir. This is Rujita from Filmfare. This side. My question is for Neeraj, sir. So this is your second feature film in 10 years. So What took me to 10 years? yes, why I this? know Because that you're such a question. great filmmaker. But were you waiting for something that that felt worthwhile, that excited you? Why this wait? Honestly, I for the past 10 years I've been trying to answer that question myself, and I've not got that answer. But what has come to me is that I think I'm extremely and deeply hungry to make something that forces my inner. I mean, it makes me get out of bed and just scream and want to make it. So it's not at all as per what people would imagine, that it's not an aspiration for greatness. It's just that it has to move me. It has to make me feel part of a larger cosmos, a larger conscience that is beyond our existence. And if I can add and contribute to any way, that was the entire aim. So I did tour around the country. I was at a point obsessed with wanting to make a film on farmer suicides. Or, there was a biopic that I was about to make. So then I also made some couple of shorts and TV shows that I've done. But yeah, nothing moved me. Like, the biggest thing that I feel about this film
that drove me was friendship as a vessel. You know, the vessel of friendship that you can talk about so many things, you know, and actually there's no substitute for that in English, but I would say that हिंदी में बोलते हैं कि जो मित्र और मैत्री, तो उसका बहुत फ़र्क है. तो ये फिल्म बता रही है कि उसके दोस्ती के माध्यम से आप काफ़ी चीज़ों का मेटाफर लेके, आप यूफेमिज्म लेके बता रहे हैं कि दो दोस्त ही नहीं, दो परिवार, दो गुट, दो समाज, और जो हमारा जो फासला है जो अर्बन और पुअर का भी, हम सबको एक जगह एक पॉइंट में सोच के मैत्री लानी चाहिए. Hi, Neeraj here. Yeah. Hi. Okay, I know this question is for the producers, but I wanted to ask you, how are you guys planning to market this film? Because last time we had seen Lapata Ladies, how Amir and Kiran went all over the world promoting the film for the Oscars, and this time, what are you guys planning? Right now it hasn't even sunk in, so I don't even know. Like, so we've said that okay, let's park it, let's figure out. But like for now, let's soak in the release. So 26 September. After that is when we want to like think of anything. Great. Well, Thank- yes, of course, it is going to help, and we are quite privileged to have his support. He's been so instrumental in giving us a copious amount of notes. He sent across our producer Merita Toscan about the script, so I changed the script. Guys, please don't talk while we are. It's really distracting. I'm sorry. So when we, I just said, yeah, it's very distracting. I'm sorry. So his contribution to the script has been like quite a lot because I've changed those beats. And then again, he came back when we were editing the film. He's given feedback on the edits. So, and all of this selflessly. I don't think any person, I mean, that's the reason why he's the biggest filmmaker around the world. So we are good. आपका सवाल था. मेरा सवाल है कि आज के टाइम पे बड़ी बड़ी मूवी आती है, बड़े बड़े टाइम कहीं चल नहीं पा रही है, लेकिन कहानी मायने रखती है. पहला एक टाइम था कि स्टार देख के लोग चले जाते थे, लेकिन कुछ टाइम बदल गया है. तो आप किस तरह ये आज के टाइम पे मानते हैं कि स्टार कहानी जरूरी है कि स्टार जरूरी है? देखो, मैं तो कभी भी बोलूँगा कहानी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है.